Writing task 1 pie chart. So basically students ਨੂੰ writing task 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਟਾਸਕ 2 ਟਾਸਕ 1 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਊਐਵਰ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਪਾਈ ਚਾਰਟ। ਯੂਜਲੀ ਜੋ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ। ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ whenever ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 80% ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੇ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ 80% ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ 80% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਫॉर एग्जांपल इट्स 20%, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, फॉर एग्जांपल इट्स 25%, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ % ਮੀਨਸ ਪਰ 100 ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਪਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਈਅਰਸ ਦੇ ਪਾਈਜ਼ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਈਅਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਿਖਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਅ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ। ਇਹ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ 1995 ਐਂਡ 2005, right? So this is how an introduction is presented. ਜਿਵੇਂ ਇਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ that the pie charts below show the comparison of different kinds of energy production of France in 2 years, means 2 different years ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ % એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਰਮ 4 ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ। ਫਸਟ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਆਲ। ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਡੀ 1 ਐਂਡ ਬੋਡੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2 to 3 ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ 3 to 4 ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 7 to 8 ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 to 8 ਵਰਡਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ 150 to 180 ਵਰਡਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਮੈਥਡਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਾਈਨੋਨੀਅਮਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਸਾਈਨੋਨੀਅਮਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ the pie charts below show the comparison of different kinds of energy production of France in 2 years. So the ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the presented, pie charts ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ pie chart ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। show ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ delineate, different ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ various, kinds ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ types, एनर्जी प्रोडक्शन की जगह लिख सकते हैं एनर्जी जनरेशन। एंड जिमें आपां इंट्रोडक्शन 2 ईयर्स दिते हुए ने, सो आप रीफ्रेजिंग वाले इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं 1995 एंड 2005, राइट। सो ये इंट्रोडक्शन अपनी कुछ इस तरीके की दिखेगी। द प्रेजेंटेड pie charts below delineate the comparison of various types of energy generation of France in 1995 and 2005, right? So this is how we rephrase the introduction using synonym.
ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਜੋ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਟੂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਮਟਾਈਮਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨੋਨੀਮਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਗੋਟ ਸਟਕ ਇਨ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਰ क्योंकि इंट्रोडक्शन ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ करना ਜ਼ਰੂਰੀ है इसलिए आप सैकेंड मैथड ऑप्ट कर लेने हैं जिथे आप कुछ नहीं करना, जस्ट जी फॉर्मेशन है उन्होंने ग्रामैटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली वेरी कर देना। जिमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे विच ही ऑलवेज अपनी इंट्रोडक्शन प्रेजेंट की जाती है। इस दे विच अगर आप इंट्रोडक्शन देखिए तो इसका फॉर्मेट बनता है सब्जैक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस एंड ऑब्जेक्ट। हाउएवर अगर आप ये पैसिव टेंस नूं देखिए तो ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके नाल बनती है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट। सो वट वी हैव टू डू इज आप पहला आइडेंटिफाई करना है कि गिवन इंट्रोडक्शन दे विच सब्जेक्ट की है, वर्ब की है एंड ऑब्जेक्ट की है। एज आई हैव हाईलाइटेड हियर दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। सो जो आप पैसिव फॉर्मेशन करांगे सब तो पहला आप लिखना होंगे ऑब्जेक्ट एज आई हैव मैंशन हियर। दैन क्योंकि इत्थे आपां नूं कंपैरिजन दिता होया, सो कंपैरिजन इज अ सिंगुलर वर्ड, सो कंपैरिजन दे नाल आपां यूज करांगे इज दे नाल लग गई शो दी थर्ड फॉर्म विच इज शोन। सो सब्जेक्ट की अपना बाय द पाई चार्ट। सो दिस इज हाउ वी रीफ्रेज इंट्रोडक्शन यूजिंग एक्टिव टू पैसिव फॉर्मेशन। मूविंग टूवर्ड्स ओवरऑल, ओवरऑल सीखण तो पहला आपां एक गल ये सीखनी है कि पाई चार्ट च आपां लैंग्वेज किस तरीके नाल यूज़ करांगे। बेसिकली पाई चार्ट दे विच 3 तरह दी लैंग्वेजेस यूज़ हुंदियां ने। फर्स्ट लैंग्वेज है प्रोपोर्शन लैंग्वेज, मीनस जिस दे विच आपां जिवें आपां नूं दिता होया 20% तो हर जगह ते आपां 20% नूं रिपीट नहीं करांगे, आपां 20% की जगह अ फिफ्थ लिख दांगे, मीनस आपां फ्रैक्शन लैंग्वेज नूं यूज़ कर दांगे, राइट। सैकेंड लैंग्वेज होंदी है कंपैरिजन की लैंग्वेज। देखो जो भी आपां नूं 2 शेयर दिते हुए ने, वन शेयर इज़ 50% एंड सैकेंड शेयर इज़ 20%। ये आपां नूं दिख रहा है कि जो फर्स्ट वाला शेयर है वो सैकेंड वाले शेयर तो वध है, मीनस आपां दोनों नूं की करांगे कंपेयर करांगे। कंपैरिजन करना डेफिनेटली बहुत जरूरी है बिकॉज जो भी आपां नूं टास्क 1 प्रेजेंट किया जाता है ਉਹਦੇ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन च लिखिया होंदा है दैट मेक कंपैरिजनस वेयर रेलीवेंट। मीनस तुसी अगर सिर्फ डाटा प्रेजेंटेशन करते हो तो बैंड स्कोर घट मिलणगे, पर अगर तुसी कंपैरिजन करते हो तो तुहानूं बैंड स्कोर डेफिनेटली वध मिलणगे, राइट। सो सैकेंड लैंग्वेज अपनी होंदी है कंपैरिजन की लैंग्वेज, जिस दे विच आपां डिस्क्राइब करना है कि गिवन पाई चार्ट दे विच द बिगेस्ट शेयर किहड़ा एंड द स्मॉलेस्ट शेयर किहड़ा, राइट। थर्ड जी लैंग्वेज है दैट वी यूज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेंड। जिमें कि आपको पता है एक पाई चार्ट अपन दिता होया 1995 का एंड सैकेंड पाई चार्ट दिता होया 2005 का, राइट। सो बेसिकली अगर सेम कैटेगरीज दित्तियां होईयां ने तो डेफिनेटली 1995 च या तो जो प्रपोर्शन है वो इनक्रीज किया होगा या प्रपोर्शन की किया होगा डिक्रीज किया होगा। इस नूं आपां कहंदे आ लैंग्वेज ऑफ ट्रेंड, जिस दे विच आपां दसना है कि फर्स्ट ईयर के कंपैरेटिवली सैकेंड ईयर च जो प्रपोर्शन है वो इनक्रीज किया या डिक्रीज किया, राइट। सो ओवरऑल लिखन दे बेसिकली 2 मैथड्स नाल आपां ओवरऑल लिखते हैं। फर्स्ट मैथड इज यूजिंग सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव डिग्रीज की हैं द हाईएस्ट, द लोएस्ट, द फास्टेस्ट, द स्लोएस्ट, जो कि एक ग्रुप दे विच सब तो सुपीरियर थिंग नूं शो करता है, राइट। सो जिवें कि इस पाई चार्ट दे विच आपां नूं दिख रहा है दैट गैस एंड कोल, क्योंकि दोनों के प्रपोर्शन दोनों ही ईयर्स दे विच दोनों का जिहड़ा शेयर है वो सब तो वध है। सो गैस एंड कोल का सब तो सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन है, मीन सिग्निफिकेंट शेयर का मतलब होंदा है सब तो वध शेयर इन्होंने शो किया हुआ, राइट। सिमिलरली अगर आप देखिए तो अदर एंड न्यूक्लीयर्स का जिहड़ा इन्हां दोनों का शेयर दोनों ही ईयर्स दे विच सब तो घट है, राइट। So using these superlative degrees means the most significant, the least significant, the highest and the lowest, right। इन्हों आइडेंटिफाई करना बहुत सौखा है बिकॉज पाई चार्ट दे विच ईजिली विजिबल है कि किसका शेयर वध है तो किसका शेयर घट है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली तुसी सब तो वध शेयर वाले नूं पिक करो तो सब तो घट शेयर वाले नूं पिक करो, राइट। सो आप इन्हों इदा ही लिख देंगे जिमें कि इस दे विच ओवरऑल बनेगा ओवरऑल इन बोथ ईयर्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सिज ऑफ एनर्जी वर्क गैस एंड कोल वाइल। हुण डेफिनेटली जिथे आप कॉन्ट्राडिक्शन शो करनी है उत्थे आप क्लॉजेज ऑफ कंसेशन मीनस एक कॉन्ट्राडिक्टिंग कनैक्टर यूज करते हैं। सो हेयर वी हैव यूज्ड वाइल। न्यूक्लियर एंड अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज जनरेटेड द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फ्रांस। सो कोल एंड गैस ने सब तो वध एनर्जी जनरेट की है एंड न्यूक्लियर एंड अदर्स ने सब तो घट एनर्जी जनरेट की है। सो दिस इज हाउ वी राइट ओवरऑल विद फर्स्ट मैथड। सैकेंड मैथड ओवरऑल लिखन का होंदा है दैट वी
यूज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेंड। हुण ये ओवरऑल ये मैथड सिर्फ उस ही पाई चार्ट च लिखिया होगा जिथे एक तो वध ईयर्स का डाटा प्रेजेंट किया होगा, राइट। हुण आपां इस दे विच जज करांगे कि 1995 के कंपैरेटिवली 2005 दे विच जिहड़ी परसेंटेज है वो वैदर इंक्रीज़ की है या डिक्रीज़ की है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के नाल आपां ये भी नोट डाउन करना है कि जिहड़ा इंक्रीज़ आया है वो बहुत थोड़ा इंक्रीज़ आया या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया। जिवें कि इस पाई चार्ट च आपां देख सकते हैं गैस कोल, राइट, दोनों के केस दे विच अप्रॉक्सीमेट जिहड़ा इंक्रीज़ आया 10 साल बाद दैट इज़ अबाउट 1% ओनली, राइट। मीनस ये बहुत घट इंक्रीज़ आया जिन्हों आप कह सकते हैं मार्जिनल इंक्रीज़, राइट। सिमिलरली अगर आप देखिए अदर एंड न्यूक्लीयर दे विच तां इन्हां दे विच अप्रॉक्सीमेटली 5% का इंक्रीज़ आया। मीनस ये इंक्रीज़ की है एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। गैस कोल अदर एंड न्यूक्लीयर चारा कैटेगरीज इंक्रीज़ आया, पर देर इज़ वन कैटेगरी विच इज़ पेट्रोलियम पेट्रो इस दे इक्को एक कैटेगरी है जिस दे विच की आया डिक्रीज़ आया, क्योंकि ओवरऑल आप हाईलाइटेड फीचर मैंशन करने ने। सो सिमिलरली इनू भी आप प्रेजेंट करांगे, राइट। सो इस तरीके नाल लिखन लगे अपना ओवरऑल की बन जाएगा ओवरऑल द शेयर ऑफ कोल एंड गैस इंक्रीज्ड मार्जिनली बिकॉज दोनों का बहुत थोड़ा फर्क आया सी, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लीयर एंड अदर सोर्सेज ऑफ पावर इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। सो जिन्हों का बहुत थोड़ा फर्क आया से उन्होंने दोनों आप कंबाइन करके लिखता, जिन्हों का थोड़ा वध फर्क आया से उन्होंने दोनों आप कंबाइन करके लिखता एट द एक्सपेंस ऑफ पेट्रोलियम। यदा मतलब की है एट द एक्सपेंस ऑफ पेट्रोलियम मीनस पेट्रोलियम घट गया जिहदे करके दोनों चीज़ां चारों चीज़ां सीगियां उन्हां दे विच इंक्रीज़ आया, राइट। सो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हर कैटेगरी नूं पिक करना है, दोनों की परसेंटेज देखनी है कि किहदी परसेंटेज इंक्रीज़ की है एंड किहदी परसेंटेज डिक्रीज़ की है। सो दिस इज़ हाउ वी राइट ओवरऑल यूजिंग ट्रेंड मैथड, राइट। मूविंग टूवर्ड्स बॉडी पैराग्राफ्स। सो बेसिकली जो आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं उस तो पहला आपां इन्हों लिखन दे और डाटा कंपैरिजन करन दे ट्रेंड्स करन दी जरूरत है, राइट। सो बॉडी पैराग्राफ्स लिखन दे लई आपां 6 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स अंडरस्टैंड करने ने विच आर फर्स्ट ट्रेंड इज इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड टू, इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड बाय, third one is respectively, next is higher than, lower than, next one is accounted for and next one is a significant proportion, right। प्लस ये ही आपां पाई चार्ट च किहड़ी वोकैबलरी यूज़ करनी है ये बारे भी पता होना जरूरी है। सो पाई चार्ट दे विच बेसिकली आप परसेंटेज फॉर्म की जगह आप फ्रैक्शन फॉर्म्स नूं भी यूज़ कर सकते हैं। जिवें 80% लिए आप लिखांगे 4/5। हुण ये फ्रैक्शन फॉर्म कड्डियां किवें गईयां ने, बेसिकली अगर आप 100 नूं 5 पार्ट्स से डिवाइड करते हैं, राइट। ईच पार्ट हुंदा 20% का। सो 80 100 दे विचों किन्ने पार्ट्स ने, 5 पार्ट्स दे विचों 4 पार्ट्स ने जिहड़े 80% है, इसलिए आप यूज़ किया 4/5 मीनस 5 दे विचों 4 हिस्से। सिमिलरली 75 नूं यू कैन यूज़ 3 क्वार्टर्स। एज वी नो 1 क्वार्टर जिहड़ा हुंदा है वो टोटल परसेंटेज का चौथा हिस्सा हुंदा है। मीनस 100 का 1 क्वार्टर बन गया 25%। सो 75% किन्ने क्वार्टर्स है 3 क्वार्टर्स। सो आप 75% यूज़ करांगे 3 क्वार्टर्स। सिमिलरली बाकी भी फ्रैक्शंस आप डिवाइडेड बाय 100 करके ही कढ़ते हुंदे आ। तुसीं इहनूं स्क्रीन कैप्चर करके नोट डाउन कर सकते हो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूजफुल वोकैबलरी है, राइट। सिमिलरली यू कैन यूज़ अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी, अ माइनॉरिटी, अ टाइनी प्रपोर्शन एंड अ मेजॉरिटी, राइट। सो हुण बॉडी पैराग्राफ 1 बेसिकली बॉडी पैराग्राफ 1 दे विच डाटा नूं डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है। जिवें आपां नूं पता है कि गिवन पाई चार्ट दे विच अपने कोल 5 कैटेगरीज ने, राइट। सो 5 कैटेगरीज नूं जिवें आपां ओवरऑल च डिफरेंशिएट किया सीगा कि 2 कैटेगरीज इहो जिहियां ने जिन्हां दे विच जो प्रपोर्शन च डिफरेंस आया वो बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, मीनस तो बहुत थोड़ा डिफरेंस है, राइट। एंड 2 कैटेगरीज इहो जिहियां सीगियां जिन्हां दे विच काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया, राइट। एंड एक कैटेगरी इहो जी सी जिहड़ी इक्को एक कैटेगरी है डिक्रीज हुई सी, राइट। सो जिन्हां दे विच मार्जिनल डिफरेंस आया उन्होंने 2 कैटेगरीज नूं आपां एक बॉडी पैराग्राफ च मैंशन कर देंगे। जिन्हां च सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया प्लस जिहड़ी कैटेगरी दे विच डिक्रीज आया वो 3 कैटेगरीज नूं आपां एक दे विच प्रेजेंट कर देंगे, राइट। सो किस तरीके नाल लिखांगे, हैविंग अ मायोपिक लुक इट इज़ क्लीयर दैट, राइट, इन 1995 फस्ट ऑफ ऑल आप डाटा प्रेजेंटेशन करांगे 1995 का मीनस हमेशा फॉर्मर ईयर का डाटा फस्ट लिखना होंदा, राइट। सो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कोल, हुण आपां सब तो पहला गल कर रहे हैं कोल दी, कंप्राइज्ड ऑफ कितनी है 1995 च 29.80%, राइट, विच इंक्रीज्ड टू जो कि आप पहला ट्रेंड सीखिया सी कि पाई चार्ट आप ये वाला ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं। सो आप फस्ट ट्रेंड यूज़ किया है मीनस 1995 दे विच एनर्जी कोल तो जी प्रोड्यूस की गई है वो कितनी है 29.80% जो कि इंक्रीज कर गई विच इंक्रीज्ड टू लेस दैन अ थर्ड। हुण अ थर्ड कितना होंदा 33%। अगर आप 100 नूं 3 पार्ट्स डिवाइड करिए तो ईच पार्ट बनता 33.33% का। सो 30% कितना हो गया लेस दैन अ थर्ड।
ठीक है। सो रैपीटिशन ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਐਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਫਿਗਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਅ ਥਰਡ ਆਫਟਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ, 10 ਈਅਰਸ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। Moving towards the gas, right? Likewise, gas generated 29.63% energy in the first year, which rose marginally, right? ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਟੂ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਰਜਨਲੀ, ਮੀਨਸ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਮੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ, 1%। ਮੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੀਅਰ ਇਜ਼ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਫ ਓਨਲੀ, ਰਾਈਟ। So gas generated 29.63% energy in the first year, which rose marginally by mere 1% to 30.1% in 2005, right? So पहली यूनिट प्रेजेंट की, फिर उन्होंने दसता कि कितने इंक्रीज किया, सैकेंड दे विच आपां फस्ट यूनिट प्रेजेंट की, दोनों का डाटा डिफरेंस दस्सिया ते नाल ये भी दसता कि किहड़े ईयर दे विच कित्थे किहड़ी प्रपोर्शन दे उत्ते पहुंच गया। सो दिस इज हाउ वी प्रेजेंट बॉडी पैराग्राफ 1, जिस आपां 2 कैटेगरीज नूं मैंशन किया है। मूविंग टूवर्ड्स बॉडी पैराग्राफ 2, हुण रेस्ट ऑफ द जिन्नियां कैटेगरीज ने 3 कैटेगरीज ने, आपां अगर नोटिस करिए तो अदर एंड न्यूक्लीयर दोनों दे विच ऑलमोस्ट 5% का डिफरेंस आया, राइट। सो इन्हां दोनों नूं आपां कलैक्टिवली भी लिख सकते हैं। हाउ वी वुड राइट, with regards to the remaining methods of producing energy, there was an approximate 5% growth in production from both nuclear power and other sources, means दोनों sources तो ही approximate जिहड़ा change आया, increase आया, वो किन्ने दा आया, 5% की ग्रोथ हुई है, राइट। सो दोनों का आप प्रेजेंट करता, इस दे नाल ही आप रिस्पैक्टिवली वाला ट्रेंड लिखांगे, जिवें आप कहा कि 5% ग्रोथ हुई न्यूक्लीयर पावर दे विच कित्थों हुई, कित्थे पहुंच गया, 10.10%। न्यूक्लीयर पावर आप पहला लिखिया तो पहला फिगर भी किसका लिखांगे, न्यूक्लीयर पावर का, राइट। सो कित्थे पहुंच गया, 10.10%। एंड अदर सोर्सेज कित्थे पहुंच गए, 9.10% रिस्पैक्टिवली। रिस्पैक्टिवली मतलब की है कि ए विद दिस फिगर इज विद रिस्पैक्ट टू फर्स्ट कैटेगरी, हावेवर जो सैकेंड फिगर है दैट फिगर इज विद रिस्पैक्ट टू सैकेंड कैटेगरी, राइट। सो दोनों आप कलैक्टिव करके लिखता, राइट। हुण अपने कोल 4 दे 4 कैटेगरीज आप जिहड़ी इनक्रीज हुई सी वो प्रेजेंट करतियां। मूविंग टूवर्ड्स जिहड़ी कैटेगरी हुण डिक्रीज हुई सीगी विच इज़ पेट्रोलियम, सो इनू आप किवें प्रेजेंट करांगे, डेफिनेटली इक्को एक कैटेगरी है जिहड़ी डिक्रीज हुई है, मीनस इट इज़ इंटरस्टिंग फैक्ट ऑफ टास्क 1। सो वी विल यूज द कनैक्टर इंटरस्टिंगली, राइट। सो इंटरस्टिंगली पेट्रोल वॉज द ओनली सोर्स विच डिक्रीज्ड, कित्थों डिक्रीज किया, इन प्रोडक्शन फ्रॉम 29.27% in 1995 to around a fifth. A fifth is 20%, so around a fifth का मतलब क्या है कि a fifth 20% दे नेड़े तेड़े। So कितना proportion है, 19.55% in 2005, right? So this is how we present data. जे तुसी repetition नू avoid करोगे, variation of connectors नू use करोगे, vocabulary दी variation नू use करोगे, तो definitely तो task 1 दे विचों band score है जेड़ा वध मिलेगा, right? Data presentation दे नाल data comparison with good word usage is very important. So this is how we write a 9-band sample answer in task 1. आई होप तुहानूं ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होएगी। सो इस तरह दियां होर वीडियोज़ देखने के लिए, इस तरह के बाकी ग्राफ्स के भी सैंपल आंसर्स नूं देखने लिए प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बैल आइकन, ताकि तुहानूं नाल दी नाल नोटिफिकेशन मिल जाए जदों भी कोई नवी वीडियो अपलोड होवे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।